HCF and LCM of two numbers are 7 and 140 respectively. If the numbers are between 20 and 45, नंबर जो है वो किसके किसके बीच है 20 and 45 के बीच में है ना, मतलब 25 से अधिक होगा 45 से कम होगा. It will be more than 20, it will be less than 45. It is in between 20 and 45. Okay, so that means we have the range now. We have the range, that number is lying between 20 and 45, and we don't know that number, and that number's HCF and LCM are given. Understood? HCF is given how much? First of all, let's take that number as A, and the second one as B. Got it? We have chosen those numbers as A and B. Got it? Now HCF of A and B is given. HCF of A and B is given how much? How much is given? 7. Huh? 7. Okay. And LCM of the A and B is given? 140. Got it? Now we know one formula related to HCF, LCM, and product of two numbers. So what that formula is? LCM into HCF is equal to product of two numbers. I can write this as first number into second number also. Okay. Now just put the values. In the formula. LCM is how much? LCM is how much? 140. HCF is how much? 7. And numbers. First number we have taken as A. Second number we have taken as B. So we can write down here as A. A into B. Understood? No? Yes, sir. Now we have got the product of the numbers. How much is coming? When you multiply this one? 980. Now you have the product of the numbers. Okay. Now question is asking me what? If these are the HCF and LCM, if the number is between 20 and 45, what is the sum of the numbers? What is the sum of the numbers? तो सबसे पहली बात, अब आ लेते हैं नंबर्स पे, है ना? A जो है वो 20 और 45 के बीच का नंबर, A is in between 20 and 45, और वो नंबर जो है वो 7 से divisible है. 7 से divisible है या नहीं? तो 7 से अगर divisible है, we are taking that as it is divided by x times. Understood? है ना? क्योंकि A कुछ भी हो सकता है ना? A तो कुछ भी हो सकता है. 20 और 45 के बीच में ऐसे कई नंबर हो सकते हैं जो 7 से divisible हो, और वो कितने भी टाइम्स में डिवाइड हो सकते हैं. समझ में आ गया? That's why in general we have taken, since our A, we don't know what A is, so A equals to 7 into x, and B equals to 7 into y. Why we have taken this as y? Because B is a different number. That's why the question will be also different. समझ में आ गया? Question भी different होगा. B equals to 7 into y. अब ये जो HCF हमारा x और y का आएगा, वो कैसा होगा? 1 over 2, क्योंकि x और y कैसे नंबर्स होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे, को-प्राइम नंबर्स, है ना? को-प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिनका ऐसे नंबर, जिनका HCF. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक नंबर मैंने लिया 40, एक नंबर मैंने लिया 28, ठीक है? अब ये 7 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स. ये 7 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स. भाई क्या ये दोनों नंबर को-प्राइम नंबर्स हैं? नहीं सर. समझ में आ गया? अगर मैं दूसरा नंबर 7 और 40, ये 7 से कितने बार डिविजिबल है? 1 बार. ये 7 से कितने बार डिविजिबल है? 2 बार है. तो 1 और 2 कैसे नंबर हो जाएंगे? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर x और y जो है वो क्या है? को-प्राइम नंबर. समझ में आया? क्लियर हो रहा है? दूती समझ में आ गया यहाँ तक, है ना? अब अगर x और y मेरा प्राइम नंबर है, मेरे पास a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, जो कि 7x है और 7y है. मेरे पास जो प्रोडक्ट आया है तो उसको वैल्यू पुट कर सकता हूँ. 9 इक्वल टू a into b. So a क्या है? 7x into 7y. Okay, got it? है ना? 7x into 7y. So here it is coming 980 equals to 49 xy. So xy value is coming how much? 980 by 49, है ना? It will become 20. So xy is coming, product is coming 20. अब मेरे को ये बताओ x और y क्या था हमारा? x और y क्या था हमारा? प्राइम नंबर. तो ऐसे x और y के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं जो आपको प्रोडक्ट करने में क्या देगा? 20, है ना? तो पहला क्या पॉसिबल हो सकता है नंबर? अगर आप 1 लेते हो तो 20 हो सकता है, तो इनका प्रोडक्ट 20 आ जाएगा, और दोनों को प्राइम नंबर है ना? फिर आप 4 और 5 लेते हो, इसमें भी आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? प्राइम नंबर, है ना? मतलब ऐसे इन सबका कैसा है? 1 है ना? x अगर आप 1 ले रहे हो तो y भी जो है क्या बोलते हैं 20 हो सकता है, और y आप 1 ले रहे हो तो x को 20 हो सकता है. समझ आ गया? बट HCF क्या होना चाहिए दोनों नंबर का? 1. अब लेने के लिए तो हम लोग 10 और 2 भी ले सकते हैं. 10 into 2 करने में भी तो मेरा 20 आ जाएगा. समझ में आएगा? क्लियर है? HCF कितना होना चाहिए? 1. तो यहाँ पे अगर x और y को-प्राइम नंबर है और HCF 1 है, तो 2 ही पॉसिबल केस हैं ये, और इनका उल्टा एक्सचेंज वैल्यू कर लो तो टोटल 4 पॉसिबल केस हो जाएंगे. समझ में आ गया? तो अगर मैं x इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, y इक्वल्स टू 20 लेता हूँ, तो मेरा a का वैल्यू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि x अगर 1 है तो a कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा. और a और b कैसे नंबर्स थे? ये नंबर 20 और 45 के बीच के नंबर थे. तो यहाँ पर तुम्हारा एज देख लो 7 आ रहा है ना, तो ये 20 और 20 के बीच में आया, तो 20 और 45 के बीच में आउट ऑफ द रेंज. तो हमारा ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो. समझ में आया? क्या ना 120 वैल्यू हो सकती है ना 21 हो सकता है x और y की वैल्यू. समझ में आ गया? ना सेकंड पे आ दो 4 और 5 मतलब क्या? a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 into 4 हो जाएगा 28, b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 35. 7 into 5 is 35. अब क्या है? 28 और 35 अपना 20 और 45 के बीच का है कि नहीं है? समझ में? तो अपने को 2 नंबर चाहिए थे, 2 नहीं, नंबर तो और भी हो सकते हैं, बट 2 ही आप लिखेगा क्योंकि a और b 2 ही नंबर है ना? तो 2 नंबर जो चाहिए तो वो अपने पास आ गया. अब अपने से क्या पूछा है क्वेश्चन में? सम ऑफ द नंबर्स. समझ में आ रहा है? इन दोनों का सम निकालोगे 25 प्लस 28 प्लस 35